and gentlemen, it's the theatre of the absurd in Pakistan. As India prepares to avenge Pahalgam, Pakistan has hit the panic button. After Prime Minister Modi gave a free hand to the forces yesterday, Pakistan's Minister Ataullah Tarar screamed to the world at 2 a.m. in the middle of the night that India will attack us in the next 24 to 36 hours. When India began exercise Akraman, Pakistan scrambled with a begging bowl seeking money and military help from China and Turkey. When Prime Minister Modi went into a huddle in the war room, Pakistan got nightmares of being struck by our forces. Even before India fires a first single bullet, Pakistan is struck with panic and pandemonium. India's latest intel report exposes Pakistan's battle plans, which are built more out of fear than strategy. In Gujranwala, 100 kilometers from the border, a Pakistan army convoy has rushed to the border. In Lahore, 25 kilometers from the border, howitzers mounted on military trucks were sent scurrying. Meanwhile, Pakistan Air Force sent its jets to Khyber Pakhtunkhwa. Also, when Pakistan soldiers were being sent to be cannon fodder, their generals are completely missing in action, fleeing the front lines. After his two-nation theory bombast, Pakistan Army Chief Asif Munir and his family, people are saying, have gone missing. And these are not people in India. People in Pakistan are saying that families been exported to London and the Pakistan Army Chief is nowhere to be spotted. Flight tracking data suggests he's fled to London, say Pakistani handles. But watch how Pakistan gets delusional. Palwasha Khan, a Pakistani senator, said today that General Munir will be offering prayers in the Babri Masjid soon. The general, who faces ridicule and desertions from his own army, dreams of entering India, and that too in Ayodhya. The only truth coming out of Pakistan's factory of lies is that they have actively shielded the perpetrators of the Pahalgam attack. The TRF, watch the fear-fueled rants from Pakistan. You heard that? They worked very hard to remove Pakistan's and TRF's name from the dreaded terror list of the United Nations. So what is spooking Pakistan? Remember today, Prime Minister Modi chaired a complete flurry of meetings, Cabinet Committee on Security, then the Political Committee meeting, CCPA, the CCEA, which is the Cabinet Committee on Economic Affairs, and finally the full Cabinet meeting. While the war room was abuzz, no whisper of operational details have been given out anywhere, unlike in Pakistan. But here's why Pakistan is scared. Let's tell you about Pakistan's terror assets, which they are hiding from the world. Dawood Ibrahim, mastermind of 1993 Mumbai blast, was last seen in Karachi. Zakiur Rahman Lakhvi, 2611, mastermind, believed to be in Rawalpindi. Zarar Shah was last seen in POK, as was Masood Azhar, the kingpin of 2019 Pulwama attack. Saeed Salahuddin, the terror financer of the proxy war in Jammu and Kashmir, also last seen in POK. Flight data suggests that these terror bosses too have fled to, in fact, been moved to safer locations by the Pakistani army themselves, the biggest assets they actually own. Is this why General Munir is hiding for the last 4 days? Is this why a demoralized Pakistani army is wrecked with desertions? So, ladies and gentlemen, the bluff and bluster giving way to complete pandemonium and panic, and the mutual or legitimate question we are asking on the news tonight: is Pakistan defeated even before the battle has begun? That's the question, and that's the debate on the other side. You're watching the News Hour at 9, debate number 1, on Times Now, Super Prime Time.
Joining the debate tonight, Major Gaurav Arya, editor, Chanakya, strategic affairs expert, Mehran Mari, representative of the Balochistan at UN Human Rights Commission and the EU. Also joining this evening is Mohammad Zubair, ex-federal minister, former governor of the Sindh province and spokesperson of Nawaz Sharif and Maryam Nawaz. Azazul Haq Abbasi, president of the Islamic Youth Alliance, joining the show. Also joining the show, Dr. Hussein Thebo, strategic affairs analyst. Faraz Saeed, journalist, joining us in just a minute, as is Dr. Sudhanshu Trivedi, member of parliament and national spokesperson of the BJP. First to you, Mohammad Zubair Sahab. The question tonight is, why is there so much of panic? 2 a.m. Press conferences trying to address the Western media, the Western governments, to try and tell them 24-36 hours India is going to come into Pakistan. इतनी ज़्यादा पैनिक ही क्यों है पाकिस्तान की पूरी सरकार, पूरी गवर्नमेंट? Okay, thank you very much for inviting me again. First of all, give me a minute or 45 seconds, whatever I have, before anyone intrudes, because otherwise the answer doesn't get through. There is no panic in Pakistan. I can assure you there is absolutely no panic. The panic that I see when I join the last, this is the third day that I am on Indian network, and it seems there is a panic here. Believe me, there is no panic. And I don't know who told you a 2 a.m. press conference. The press conference that was held, the one, if you are referring to the Director General, Inter-Services Lieutenant General, who held a press conference, that was last evening, 6:30 Pakistan time or something like that. There was one that was held by the Information Minister that was also during the normal hours. So there's no 2 a.m. And as far as General Asim Munir, I think there's a wrong perception in Indian media that he is hiding. Why would he be hiding? The morale is perfectly all right. We know India is in a trap. Damn if they attack, damn if they don't. That's where the Indians are. Because if Indians thought that Pakistan would obviously be scared of an Indian attack, Pakistan is not. Because the military leadership in India, only they know that it's not going to be a sure victory. It at best will end in a stalemate. I'm not talking about nuclear thing. I'm just talking about a normal adventure for the Indians. So when the military leadership, if they had known and if they had conveyed to Prime Minister Modi that it will be a walkover or a very simple victory, they would have already done so. It's been a week. We have only seen statements from the Indian political leadership threatening Pakistan. We are absolutely ready. We are strong. In fact, one thing that you have done, that you have united Pakistan in a very, very polarized political environment where obviously, you know, and Major Saab knows better than anyone else how the difficulties the government faced with the opposition party led by Imran Khan. So there's no panic. They're all united. At least you can give credit to India for uniting Pakistan, which is literally falling apart from every side. Really, but Major Gaurav Arya, there's absolutely no panic. They're all calm, quiet. All these statements, all the statements that are coming in the Senate, figment of our imagination. Actually, nothing of the sort has actually happened. Everything is fine. सब कुछ चंगा है. Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhary is the name of DGSP, sir. आप भूल गए थे तो मैं बता दूं. पहले मेजर जनरल हुआ करता था, अभी अपग्रेड करके अपॉइंटमेंट को लेफ्टिनेंट जनरल का कर दिया ना, 3 स्टार अपॉइंटमेंट. अपने जनरलों के नाम भी याद रखो गौरव आर्या. मेरी बात सुन लें सर, मैं जरा अपना खत्म कर लूं, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद आप बोल दीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे. जी, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि पैनिक नहीं है. आप कहते हैं, बहुत अच्छी बात है सर. जरूर पैनिक नहीं होगा पाकिस्तान में, लेकिन जिस तरीके के स्टेटमेंट्स, देखिए स्टेटमेंट्स में फर्क है. कौन स्टेटमेंट दे रहा है इसमें फर्क है. हमारे लीडर स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप इज द बॉस. अगर राजनाथ सिंह जी कुछ कहते हैं, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर. राजनाथ सिंह जी का वजन है, मोदी जी का वजन है. आप एक बात बताइए सर, बी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. दिल पे हाथ रख के आप बोलिए सर, आपके प्रधानमंत्री का, आपके आर्मी चीफ के सामने क्या वजन है सर? आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का क्या वजन है? आप ये बताइए.
किसने चुना है उनको, किसके वोट लेकर आए हैं वो, उनके पीछे क्या कौम खड़ी है। ये कहने से इंडियन चैनल पे नहीं होता सर। बात यह है कि मोदी जी क्यों स्ट्रांग हैं। इसलिए नहीं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कि 140 करोड़ लोगों के लीडर हैं, इसलिए स्ट्रांग हैं। शहबाज शरीफ साहब किसके लीडर हैं सर, किसने वोट दिया उनको। तो आपके यहां जो पॉलिटिशियंस कहते हैं, जो कह रहे हैं, दैट इज हॉट एयर। अगर यही बात जनरल आसिम मुनीर बोले तब मैं मानूं कि हाँ आप पे दम है। वो बोल नहीं रहे। हमारे यहां जो बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल हायरार्की, क्योंकि यहां पे पॉलिटिकल हायरार्की की सुप्रीमेसी है, क्योंकि हमारे यहां डेमोक्रेसी। आपके यहां हाइब्रिड भी नहीं बाकी है। एक तो ये पॉइंट है सर। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कहना कि हिंदू मारे जाएंगे और उनके पास इतनी लकड़ियां नहीं होंगी अपनी लाशें जलाने की, और ये आपके पार्लियामेंट में ऐसी जबान इस्तेमाल होती है। दूसरी चीज कि हाँ वो बाबरी मस्जिद की पहली ईंट कौन रखेगा, आसिम मुनीर। वो आर्मी चीफ है कि मौलाना है। नमाज पढ़ेगा, अजान देगा, यही काम है उसका। नमाज पढ़ेगा, अजान देगा। कितनी नमाज, और लड़ो यार, नमाज बाद में पढ़ लेना, लड़ लो पहले। आर्मी चीफ गायब है, आर्मी चीफ हम नहीं कह रहे सर, ये पाकिस्तानी सेइंग इट। लंदन से वीडियो आ रहे हैं पाकिस्तानियों के, यूएस से, न्यू जर्सी से वीडियो आ रहे हैं पाकिस्तानियों के। कोई फ्लाइट डेटा शेयर कर रहा है कि आसिम मुनीर भाग गए। मैं ये नहीं कह रहा आपके आर्मी चीफ भाग गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आसिम मुनीर साहब छोड़ गए हैं पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 4-5 दिन से वो कहां हैं। इस समय जब मुल्क पूरा तैयार है, आपका मुल्क, कि भाई इंडियंस अटैक करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम उनको याद दिला देंगे, नानी याद दिला देंगे, वॉट एवर द केस में भी, ठीक है। इस समय क्या आपके सेपा सालार को सामने नहीं होना चाहिए? ही इज द वर्चुअल हेड ऑफ स्टेट सर, ही इज द वर्चुअल हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उनके सामने किसकी बिसात है? आपके पीएम की, आपके डिफेंस मिनिस्टर की। ही शुड बी देयर कॉम को एड्रेस करते हुए कि बच्चों फिक्र मत करो, तुम्हारा सिपा सालार यहां पे खड़ा हुआ है। पिछली स्पीच उन्होंने कब दी थी? हिंदू बहुत बुरे हैं और दो कौमी नजरिया, ये हो गया ना सर, इसको तो 6-7 दिन हो गए अब, या 10 दिन 15 दिन हो गए अब। नेक्स्ट, वेयर इज योर आर्मी चीफ? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। हमारा आर्मी चीफ कहां है, मुझे अभी पता है कहां पे। हाँ, exactly, and I can tell you, he's at the Prime Minister's residence, yes, and there is a meeting, high-level meeting that's going on, and it's been just meetings. It's been just meetings, Zubair Sahab, that have spooked Pakistan. So please respond. Army Chief hai kahan? I'm not asking. Pakistanis are asking. Okay, so Major Sahab is obviously talking about a completely different subject. Who has the power in Pakistan? How many votes Shehbaz Sharif got, and whether defense minister has been legitimately elected or not. That's an absolutely separate debate. We are discussing here the recent events, terrorist attack, and India's response to that. And the question that Major Sahab has been raising, where is Army Chief? Whether he has the authority more than anyone else in the country, irrespective of that, why should he be seen in public? He has no business to be in public. Why should he be going around the towns and cities of Pakistan and making people feel comfortable that Pakistan Army is there to protect Pakistan without any concerns of the general public? At least it's clear to everybody in India and Pakistan, Zubair Sahab, that you've dodged the question. You've dodged the question on who has the real power in Pakistan. You dodged the question on whether it is Asif Munir, the army chief, or is it Shehbaz Sharif, the so-called Prime Minister of Pakistan, and Sudhanshu Trivedi. Dr. Sudhanshu Trivedi, isn't this the moot point? Different parts of Pakistan are in different kind of panic modes. Some resigning from the army because they don't have an Aka who will actually stand up and, give them the confidence that he's around. Some, in Balochistan who are asking for their own freedom, for their own recognition. Pakistan Army is facing the biggest challenge from them rather than from India. And then some ministers who have to wake up at night and address press conferences and say, oh, 24 ghante, 36 ghante. Just because the Prime Minister, the Defense Minister held some meetings. There was total panic yesterday and today because India is holding meetings. What does that tell you about Pakistan, Dr. Trivedi? Actually, what Major Gaurav Arya has said, I would like to elaborate in a slightly more extensive direction. I'm just quoting the statements of the Pakistani leaders. Khwaja Asif in his interview to BBC has said that yes, we have done the dirty work for them for 30 years.
General Musharraf has said, accepted, yes, they were involved in perpetrating the terrorism. अभी नवाज शरीफ साहब का कुछ महीने पहले का स्टेटमेंट था कि हां, वाजपेयी साहब आए थे लाहौर डिक्लेरेशन में, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हमने की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान का दिया गया बयान है कि जो इन्होंने बालाकोट में किया था उससे ज्यादा खौफनाक कुछ कर सकते हैं। इट्स अराउंड 4 years बैक। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कोट, आज जो भी ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो अपनी नेशनल असेंबली में, आई एम कोटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली कोटिंग द देन फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी। वो इस वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बाय ए रूलिंग पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। नाउ द बिगर प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज दैट फॉर 30-40 years दोज कंट्रीज हु हैव फोर्स्ड हिम टू डू द डर्टी वर्क, नाउ दे आर इन्वॉल्व इन देयर ओन पर्सनल वर्क। America has no time to think over what is happening in Pakistan. And if you look at China, it is involved in the trade war or the tariff war with Europe and America. And it is looking with a very हसरत भरी निगाहों से हिंदुस्तान को देख रहा था। साहब, एक हफ्ते पहले चाइना का दिया गया बयान है, इट्स अ टाइम टू टैंगो बिटवीन ड्रैगन एंड एलिफेंट। अब चाइना तो कैश 22 में फंस गया कि आपका साथ देगा तो इंडिया की मार्केट भी गई। अब इंडिया की मार्केट, यूरोप की मार्केट, अमेरिका की मार्केट गई तो चाइना की मशैयत गई, इकोनॉमी गई। अब आपका साथ देगा तो इकोनॉमी गई और साथ नहीं देगा, अगर वो मतलब इधर ध्यान देगा तो पाकिस्तान गया। और तो और साहब, आपके जो सबसे खासम खास होते थे, हम सफर, हम नियाला, हम प्याला, हम राज, यूनाइटेड अरब अमीरात, वो आपके साथ नहीं। उसने तो आलोचना कर दी है, इट क्रिटिसाइज्ड इट। सऊदी अरब हैज क्रिटिसाइज्ड इट, ईरान हैज क्रिटिसाइज्ड इट। Sir, look at these two poles of the Muslim world. Iran and Saudi Arab both have criticized this terror attack. So I think under the dexterous diplomatic leadership of Prime Minister Sri Narendra Modi, we have put Pakistan in such a masterly isolation at the international level कि अगर पाकिस्तान अपनी जमीन से बैठकर अरब और ईरान और यूएई को देखता होगा तो उसके मुंह से यही निकलता होगा कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। तो मुझे लगता है कि इफ यू लुक एट द डिप्लोमैटिक एंड इकोनॉमिक लेवल, पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू इट्स मोस्ट क्रिटिकल फेज सिंस योर फॉर्मेशन इन 1947। और ये जो खामखा की वो बाबरी मस्जिद की ईंट वीट रखेंगे, यहां पे मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान। आपकी आइडेंटिटी, आपका बाबर से क्या लेना देना भाई साहब? वो पैदा हुआ उज्बेकिस्तान में, रूल किया दिल्ली में, मरा अफगानिस्तान में और खामखा में हल्ला मचा रहे पाकिस्तान में। मतलब इसे कहते हैं द फेक आइडेंटिटी। और आपने तो अपनी जो लैंग्वेज भी अडॉप्ट की बनने के बाद, आपकी लैंग्वेज क्या थी? पंजाबी थी, सिंधी थी, पश्तो थी, बलूच थी, और जब तक बांग्लादेश आपका हिस्सा था बंगाली थी। वो तो आपने ली नहीं, आपने तो लैंग्वेज भी उर्दू ली जो दिल्ली और लखनऊ की लैंग्वेज थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान इज मूविंग टूवर्ड्स द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस to political crisis. Pakistan is in a very difficult situation, and as far as the war is concerned, we do not war. But if you follow, you remember, हम लोग बच्चे थे उस समय स्टूडेंट लाइफ में, बेनजीर भुट्टो ने 1990 में कहा था कि हम 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ेंगे भले ही घास की रोटी खानी पड़े। साहब 35 साल हुए हैं, घास की रोटी खाने की नौबत आ गई। पाकिस्तान की स्थिति इतनी बुरी हो गई है और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बन गया है, 3rd बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बन गया है, 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चर बन गया है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में वो नंबर 1 बन गया है। तो मेरे ख्याल से इफ यू बी रियलिस्टिक देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जुबैर साहब, जी, एक तो देखें, विद ऑब्वियसली योर पैनलिस्ट्स आर extremely very good people and they understand the dynamics, and what I can feel in 2 days time, the rhetoric from the Indian side has completely gone down. No more are they talking about the war. Now they're talking about what happened in 1947, what happened in Balochistan, how is the economy, what Benazir Bhutto said in 1990. By the way, Benazir Bhutto did not say that.
Her father, Zulfikar Ali Bhutto, said it in 1965. So if you're going back, then we can go back to 1971 as well. We can talk a lot of history. India has not been behind whatever has happened to Pakistan in 1971, whatever has been happening in Balochistan. The point that I came to defend here, and I'd like to defend Pakistan's position with regard to the current situation, the escalation in the tension between India and Pakistan, which basically infuriated India that there has been terrorism and they think Pakistan has done that. They accused Pakistan. We went to the international community. We offered, and by the way, Iran has not accused Pakistan. They have sympathized with You India. have three friends left. Iran, possibly Iran. You've got maybe China lurking in the shadows. You have very few friends left. But let me tell you, Osama bin Laden was found in your backyard. So your terror factory is not hidden from anybody. I am saying there is not a single country which has accused Pakistan of terrorism. They have sympathized with India just the way they sympathized Saudi Arabia, Iran, United States, Russia sympathized with Pakistan when the Jafar Express incident happened last month in Balochistan. No one has accused Pakistan. Nobody has accused Pakistan. We don't need to. You have Khwaja Asif to do that for everybody. He said it on Sky News. Major Gaurav Arya wants to come in. Major Gaurav Arya. मैं यही कह रहा था नाविका, was saying exactly that. और देश क्या accuse करेंगे जब आपका sitting defense minister he says that we have done this dirty work for 30 years and not just that. They took sir, he did not say Afghanistan. Please, no, एक minute. Allow me to say this, sir. Please allow me to complete my point, sir. देखिए, ये आप लोग व्हाइट वॉश मत करिए जो उन्होंने बोला है. उन्होंने अफगानिस्तान के लिए बोला, उन्होंने पूरे सेंटेंस में अफगानिस्तान का वर्ड यूज नहीं करा. आपको कैसे पता कि उनके जहन में क्या चल रहा है? 9/11 की बात की थी और सोवियत यूनियन की बात की थी. सर एक मिनट सर, बात सोवियत यूनियन की है, ये सब है. सोवियत यूनियन कब? 9/11 के समय सोवियत यूनियन नहीं था सर. सोवियत यूनियन 1979 को दो इंसिडेंट की बात की थी. मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ सर. आप थोड़ा फंसते जा रहे हैं जुबैर साहब अपनी ही बातों में. और ये टेरर फैक्ट्री countries have spoken to India and India has taken, and you're saying you're not nervous. Okay, great. So let me ask Dr. Hussain Thebo, if you're not nervous, then why do you have these press conferences? Why do you have these statements coming in the parliament? Why do you have these statements and, coming in interviews given to Sky News? There's no panic, no? Nothing really is happening. Why are families of army chief being sent to other countries? And that's not my information. This information is coming from Pakistani news agencies as well as social media. So if there is no nervousness, what's the problem? Or कह रहे हैं कि India has not said it's going to war and people have changed their mind in India. Well, बता के नहीं आएंगे, बारात नहीं ला रहे हैं. आर्मी आएगी, कब आएगी, जगह भी अपना होगा, टाइम भी अपना होगा. लेकिन आप पैनिक तो नहीं है ना? नहीं. अच्छा, अब मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह से आपने बाकी मेहमानों को टाइम दिया है, आप काइंडली मुझे टाइम दे दीजिएगा. तो मैं आपके हर क्वेश्चन का पहली मर्तबा मैंने मेजर गौरव आर्या साहब ने भी सेंसिबल क्वेश्चन रखे, तो मैं उनके सबके 1 बाय 1 जवाब देना चाहता हूँ. सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि आपके आर्मी चीफ कहाँ हैं. हमारे आर्मी चीफ रावलपिंडी में बैठे हुए हैं और जो उनका काम है वो कर रहे हैं. मेजर गौरव आर्या साहब पहले ये वीलॉग करते थे कि जो आर्मी चीफ है उसका क्या काम है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है, उसको अपने ऑफिस में, अपने बैरक्स में बैठा. ये इन्हीं की बात से मैं पॉइंट उठा रहा हूँ. अब मुझे बताएं कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब है, ये नरेंद्र मोदी साहब क्यों डरा हुआ है, क्यों खौफ में है, क्यों कल सारे चीफ्स को बुलाया? भाई डायरेक्शन देना है ना, तो आप होम इंटीरियर सेक्रेटरी को देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को. पहले तो आप अजीत डोभाल के थ्रू, अमित शाह के थ्रू सारा काम कर रहे होते थे ना. अब आपके पास इतना खौफ क्यों है, इतने आप डरे क्यों हैं? कल आपने बुला के आर्मी चीफ को बुलाया, आपने नेवल चीफ को बुलाया. उसके बाद सबसे बड़ी बात आप देखें, आपके अंदर जो टेररिज्म की लहर है वो क्या है. नरेंद्र मोदी साहब ने मेजर गौरव आर्या साहब इन सारे चीफ्स के मिलने के बाद आरएसएस के चीफ से मिले. लुक एट दी लेवल ऑफ टेररिज्म. आरएसएस, अगर हम
पाकिस्तान में कोई आदमी किसी पेश इमाम से मिलता है या मौलवी से मिलता है तो ये भड़क उठता है मेजर गौरव फारिया कि जी ये देखें फलां सईद फलाना। ये मुझे आप ये जवाब दे सकते हैं आज कि अगर आपको आरएसएस चीफ मौलाना लगते हैं तो आपको कितना इल्म है इंडिया के बारे में, यह आपने आज पूरे दुनिया को बता दिया। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, प्लीज बी माय गेस्ट, प्लीज बी माय गेस्ट। क्या मतलब आरएसएस चीफ? आरएसएस चीफ मतलब गुंडा, बदमाश, मतलब आप तरह से आप अपनी हद में रहिए, आप अपनी हद में रहिए थेबो साहब। Nobody uses this kind of language for a man who's 1 minute. Sudhanshu Trivedi, please respond. नहीं, he is the head of terrorist wing in India. पहली बात तो बता दूं, क्या बात कर रही हैं आप? देखिए एक पॉइंट बहुत क्लियर हो गया नाविका जी। देखिए जो कांग्रेस के लोग बोलते थे अपनी दौरे हुकूमत में आरएसएस के लिए, वही पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं। एक पॉइंट तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। और बौखलाहट और खिसियाहट उनके चेहरे के ऊपर पूरी तरह दिख रही है। और मैं ये बता देना चाहता हूं, आरएसएस चीफ से मोदी जी की मुलाकात 30 मार्च को हुई थी। उसी समय यह तय था कि वो मिलेंगे 29 अप्रैल को। अब ये जो आपका हुआ इंसिडेंस, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पहले से तय था कि 1 महीने के बाद उनकी मुलाकात होगी। मगर वो खैर एक अलग टॉपिक है। मगर हम ये आपको बताना चाहते हैं कि यहां तो मोदी जी ने बुलाया ना आर्मी चीफ को, और इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं आर्मी चीफ और तीनों फोर्सेस के चीफ मोदी जी से। आपके यहां हैसियत है बुला के इंस्ट्रक्शन देने की? आपके यहां आर्मी चीफ तय करता है कि पीएम कौन होगा। हमारे यहां पीएम तय करता है कि आर्मी चीफ कौन होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान का बयान है। सुनिए हसन साहब, आई एम नॉट कोटिंग, आई एम जस्ट कोटिंग योर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। यहाँ सब कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर। अरे भैया ये इमरान खान का बयान है, प्रोपेगेंडा हम कर रहे हैं। मतलब गजब हो भाई। बिल्कुल आपके प्राइम मिनिस्टर का बयान कोट कर रहा हूं। मुशर्रफ ने एक्सेप्ट किया कि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट। आज आपका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बोल रहा है। दुनिया को आपके आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने। ये आपका एमपी बोल रहा है। मैंने सिर्फ आपके बयान कोट किए साहब, हमने अपना तो कुछ बोला ही नहीं है। आप इससे क्यों इतना डरे हुए हैं कि जो आज हमारी पलवेशा ने एक बयान दिया है कि आसिम मुनीर साहब अजान देंगे, आप इस पे क्यों डरे हुए हैं इतना? आपके हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं कि जो है वो बाबरी मस्जिद में? वो तो उनसे पूछिए ना जो रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो क्यों कांप रहे हैं? क्यों कांप? हम तो बता रहे हैं दुनिया को कि भाई साहब, मुझे नाविका विथ योर परमिशन, गौरव आर्या, कमिंग टू यू सुधांशु जी, गौरव आर्या करता है जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सीरियस डिबेट होनी चाहिए। ये किसी ने रैंडम उठ के, पलाशा क्या नाम था खातून का, मैं नहीं जानता उनको, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, जो उन्होंने बोला कि ऐसा होगा, ये सब मुझे लगता है कि बचकाने बयान है, इनकी जीरो वैल्यू है। आपको डराने के लिए हाँ सर, बहुत सर, मैं नाविका को भी मैं मिला था थोड़ी देर पहले टाइम्स नाउ के ऑफिस में। नाविका भी कांप रही थी बहुत ज्यादा, सुधांशु भाई भी कांप रहे थे बहुत ज्यादा। मैंने उनको मना करा कि आप मत कांपिए सर, मैं खुद कांप रहा हूं। हम सब खौफजदा हैं सर, बहुत परेशान हैं, सब डरे। हम तो आपसे भी बड़ा डर रहे हैं सर। मैंने तो मुझे पता लगा कि डॉक्टर हुसैन थे, वो आ रहे हैं सर। मैंने तो मना कर दिया था, मुझे 4 लोग पकड़ के लाए कि तुम डरो मत। गौरव आर्या, तू क्यों डरता है? अभी तू डॉक्टर हुसैन थे वो से डरता है, तू आसिम मुनीर का नाम सुनकर तेरी सलवार। एक मिनट, मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक मैं बात बताऊं, डॉक्टर साहब, देखो आप सुनिए डॉक्टर साहब, सारे डॉक्यूमेंट्स एक मिनट डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं एक बात बताता हूं आपको। मैं आपसे ना डॉक्टर साहब सुनिए, मैं आपसे सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे सर आप जनाब करके बात कर रहा हूं, इज्जत से बात कर रहा हूं। आप तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, गलत है सर। मैं आपको इज्जत दे रहा हूं, और शायद मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, मैं फिर भी आपको इज्जत दे रहा हूं। आप ऐसे मत करिए सर। मुझे मैं फिर नाविका से कुछ और रिक्वेस्ट करूंगा, ये अच्छी बात नहीं है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे इज्जत दे रहा हूं, आपको आप जनाब करके बात कर रहा हूं। अच्छा, आपने बोला कि मेरा मेडिकल खराब हुआ इसलिए मैंने फौज छोड़ दी। सर मैंने फौज छोड़ दी मेडिकल खराब होने से, लेकिन मैंने कभी हथियार नहीं डाले सर।
मैंने कभी दुश्मन के आगे हथियार नहीं डाले, मैंने कोई सरेंडर का डॉक्यूमेंट साइन नहीं करा सर। जब तक नौकरी करी, फौज में सर्विस करी, इज्जत से करी है सर। इन्फेंट्री का ऑफिसर हूं, हल्की बात नहीं है, ठीक है। चाहे तो आसिम मुनीर से पूछ लीजिए। और तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आप बात कर रहे हैं ना सर कि ऐसा कर देंगे, किसी ने बयान दे दिया, मैं वही तो पूछ रहा हूं, कहां है जनरल आसिम मुनीर? उनको बयान देना चाहिए कि मैं आजान पढ़ूंगा। उनसे बोलिए कि वो आके अयोध्या में आजान पढ़े, तब तो हमें मजा आए। अब आपके रैंडम पॉलिटिशियंस आते हैं, रैंडम पॉलिटिशियंस कुछ कहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम ये कर देंगे, ये कर, सर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मानिए मेरी बात। डॉक्टर साहब मैं आपको बड़े इज्जत से कह रहा हूं सर, इसकी जीरो वैल्यू है। नहीं, जितनी उन लोगों की जीरो वैल्यू, उतनी उनके बयान की जीरो वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल। और फराज सईद, द क्वेश्चन टुनाइट इज ओनली दिस, who is panicking? If you think India is panicking, then well, be my guest. Think that what will happen in a few hours from now, you will know. And if you think that the situation is under control in Pakistan, then please let us know. Why are people in power who actually have the power absolutely not visible anywhere, and people who are not in power are actually coming out and giving out all the secrets of Pakistan? Khwaja Asif, who said terror factories run out of Pakistan. Ishaq Dar, who said that we prayed that the resistance front, the Lashkar-e-Toiba's little baby, उनका terror attack के लिए हमने बड़ी मेहनत की, पार्लियामेंट में कह रहे हैं। अब it's the worst kept secret of what kind of exports happen from Pakistan. Except terror, you have nothing to export. Some donkeys as well. That's the state of Pakistan. अच्छा जी, एक तो नविका जी, काइंडली एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट्स एन अमेजिंग साड़ी टू बिगिन विद। सेकेंडली, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि आज का जो माहौल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसमें कोई जिंगोइज्म नहीं है, कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, और बड़े जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े आसमान को नहीं छू। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, मैंने बहुत सारे शोज में कहा, मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने फैक्ट रिपीट किया है। वो फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने 70, 80, 90, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी तक अफगान जहाद, तालिबान, वेस्टर्न एलाइज को सपोर्ट करते करते ये वॉर, ये जो फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर है, इसको क्रिएट किया। Pakistan was part and parcel in creating this Frankenstein monster, which later, of course, haunted Pakistan. And that's an absolute truth, जिसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, कोई उसको जो है इम्प्यून नहीं कर सकता। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूँ, पाकिस्तान के, जहां आपने कहा कि पैनिक कौन कर रहा है, पैनिक कोई भी नहीं कर रहा। जो इशू है ऑन द एट द हैंड इज कि अगर टू न्यूक्लियर पावर्स आर कमिंग एट ईच अदर with weapons, with hard pursuit, तो उसके अंदर नुकसान किसका होगा? नुकसान इकोनॉमीज का होगा, नुकसान अवाम का होगा, कोलैटरल कौन होंगे? पॉपुलेशन होगी ना। तो ये तो पहले दिन सोचना चाहिए था। When the statements came out, बोला नहीं था पाकिस्तान ने कि ऐसा जवाब देंगे कि देखते रह जाएंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। सुधांशु त्रिवेदी जी, who was making these statements? I don't think India ever referred to a nuclear bomb. Who was making these statements from Pakistan? देखिए, पैनिक या वो क्या होता है, वी आर द न्यूक्लियर पावर, बट ऑन 11th and 13th of May 1998, when we declared that we are the nuclear state, we also declared the doctrine of no first use. ये होती है आपकी जहनियत में जो एक गंभीरता, एक ठहराव होना चाहिए। आपकी तो हिम्मत नहीं है कहने की कि नो फर्स्ट यूज। और देखिए, ये न्यूक्लियर की धमकी देना बहुत आसान नहीं है। न्यूक्लियर वॉर नो कंट्री विल अलाउ टू हैपन साहब। जैसे ही वो न्यूक्लियर टेक ऑफ करता है, आजकल सबको पता लग जाता है, सैटेलाइट से लेके उस तक सब। तो चिंता मत करिए, हमारे जो हैं आपके बड़े शैलो डेप्थ के ऊपर हैं। आपकी कंट्री की लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। हमारा तो इतना दूर दूर तक है, इसलिए वो छोड़िए, वो विषय एक अलग है। रशिया यूक्रेन में अभी तक कभी न्यूक्लियर यूज नहीं हुआ है, और न इजराइल और हमास में यूज हुआ है। इसलिए वो कहना ही दर्शाता है कि यू आर एक्सेप्टिंग that the Pakistan is not in a position to sustain India in a conventional war. If somebody says, अगर आपने ये कहा कि न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब आपने अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, बाकी तो छोड़िए, 7 दिन का तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। लड़ाई 7 दिन से आगे चली गई तो हालत खराब हो जाएगी।
दुनिया में हथियारों के दाम इस समय बहुत ऊंचाई के ऊपर है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है, इजराइल हमास की लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है। डिफेंस प्रोडक्शन में आपकी हालत ही खस्ता है। आप जिस चाइना पे डिपेंडेंट हैं, वहां की फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन इस समय बहुत नीचे है। चाइना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी जो चाइनीज कंपनी है एवरग्रांड, उसने पिछले साल बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। वहां सिचुएशन क्या है, तो चचा शी जिनपिंग आपकी कितनी मदद कर पाएंगे, वो भी अपने आप में देखने वाली बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हकीकत को देखो मेरे भाई। ये सब जो कह रहे हैं वो बाबरी के जाके ईंट रखेंगे, ये रखेंगे, ये दर्शाता है पैनिक। और ऑन द लाइटर नोट, मैं नाविका जी एक और बात कह दूं, बिलावल भुट्टो ने कहा था ना कि या तो हमारा खून बहेगा या पानी बहेगा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बेनजीर भुट्टो ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी डॉटर ऑफ ईस्ट, और उसमें चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 25 पे लिखा है कि इन अवर चाइल्डहुड वी वर टोल्ड दैट वी आर द डिसेंडेंट ऑफ द राजपूत क्लान ऑफ हिंदूज। तो मियां बिलावल और ये जो भी बैठे हैं, भैया आपका तो पानी और खून दोनों हिंदुस्तानी है, तो आएंगे अगर वहां अयोध्या में तो जय श्री राम ही बोलेंगे। जरा चेक करवा लो, आजकल जीनोम सीक्वेंसिंग का जमाना आ गया है। कहां में लट्ठ भांज रहे हो मेरे भाई, ना डिप्लोमेसी में, ना इकोनॉमी में, ना स्ट्रेटजी में। इसी खाम ख्याली ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है पिछले 75 साल में। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल का सीईओ है, और आपके पास दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा का चीफ मौजूद है। सोचिए, हमारे पास गूगल का चीफ है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ है, मास्टर कार्ड का चीफ है, पेप्सी की चीफ, ये सब इंडियन ओरिजिन के हैं। और पाकिस्तान में लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ है। अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में आती है टैलेंट हंट करने के लिए, अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड मेहरान मरी representative of Balochistan with us. मेहरान मरी, प्लीज टेल मी, पाकिस्तान की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? जी, पाकिस्तान का सच्चाई तो इतना सिंपल है, मैं हैरान होता हूं आप लोग इतने समझदार लोगों को लाके लंबे डिबेट करते हैं, फिर भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। पाकिस्तान एक एक्रोनिम है, पाकिस्तान एक फेक क्रिएशन है जो गोरों का एक्सपेरिमेंट था। पाकिस्तान में जिहादी जनरल आसिफ मुनीर उसका बॉस है, बाप है, जो माए बाप बोलते हैं वही चलाने वाला है। ये फॉर्म 47 के लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं। ट्रू जो पॉपुलर लीडर मैं बोलूंगा वो जेल में बैठा है, इमरान खान। एक मजाक चल रहा है, आप 2 नंबर के लोगों को बुला के उनका डेजिग्नेशन, कोई मिनिस्टर ऑफ दिस फॉरेन अफेयर तो होम मिनिस्टर, तो खाद का मिनिस्टर, क्या बोलते हैं, फॉर्म 47 वाले ड्रामे बैठे हैं। पॉपुलर लीडर जेल में। पाकिस्तान एक एक्रोनिम है, बना बुनियाद नफरत के बुनियाद पे। आसिफ मुनीर ने जो लड़ लिया बलोची में, वो तो खराब कर दिया इसने। तो ये 7 दिन पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवरों को कमरे में बंद करके इसने बड़े बटास मारे कि हम ऐसे हिंदू बुरे, हम ऐसे, हमारे हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। इनके बाप दादा क्या शेख मोहम्मद के बच्चे थे, कोई सऊदी के बच्चे थे? ये सारे सिख और हिंदुओं के औलाद हैं। ये उस डिनाइल में जो अपने डीएनए को नहीं मानते हैं, ये आगे मुल्क क्या बनाएंगे? अपने हिस्ट्री को मान के कोई फ्यूचर बनता है, हिस्ट्री को डिनाई। That is the reality of Pakistan, and at a time when India is standing as the 5th largest economy, Sudhanshu Trivedi said it absolutely well. He said it that all global CEOs have Indian origins, at least the big companies globally. But what is Pakistan actually holding out to the world? The big CEOs of all the terror groups, from Lashkar-e-Toiba to Al-Qaeda, from Jaish-e-Mohammed to TRF, and all their ministers coming out and giving out admission after admission, confession after confession, stating that they have done the export of terror for decades after decades. But Pakistan, quaking in their boots, does midnight press conferences. India's coming, war is beginning, 24 hours, 36 hours. Just when a sortie along the border of 4 Rafale aircrafts took place. What's spooking Pakistan? कुछ गलत नहीं किया तो डर क्यों रहे हो? And why cry at night? You're not a baby. Or are you expecting the big daddies to come and look after you? China, for instance, is that why the war cry is coming out? The baby cry is coming out? That's the question Indians are asking Pakistan tonight.
We'll leave it at that. On the other side, the big caste census debate coming up.